Waxwing 3. Chapter 9. अध्याय 9. The donkey has no brain. गधे के पास दिमाग नहीं होता. Short introduction. संक्षिप्त परिचय. Donkeys are said to be foolish animals while a fox is very clever. But is he cleverer than the lion also? Read the story and see how a clever fox made fool of a lion. गधों को मूर्ख जानवर कहा जाता है जबकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है. लेकिन क्या वह शेर से भी ज्यादा चतुर है? कहानी पढ़ें और देखें कि कैसे एक चतुर लोमड़ी ने शेर को मूर्ख बनाया. The lion was the king of the forest. All the animals were afraid of him. Every day, he killed an animal and took it to his den. He ate the animal and then slept happily for the rest of the day. शेर जंगल का राजा था. सभी जानवर उससे डरते थे. वह प्रतिदिन एक जानवर को मारकर अपनी मांद में ले जाता था. उसने जानवर को खा लिया और फिर बाकी दिन खुशी से सोता रहा. Once, the lion became seriously ill. He became so weak that he could not even go out for hunting. For several days he had not eaten any food. He was extremely hungry, but how could he get his prey? If I do not think of a plan to get food, I would surely die of hunger. He thought. एक बार शेर गंभीर रूप से बीमार हो गया. वह इतना कमजोर हो गया कि शिकार के लिए भी नहीं निकल सका. कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था. वह बहुत भूखा था, लेकिन उसे अपना शिकार कैसे मिलता? अगर मैं भोजन पाने की कोई योजना नहीं सोचूंगा, तो मैं निश्चित रूप से भूख से मर जाऊंगा. उसने सोचा. Suddenly, he saw a fox passing that way. Oh fox! Please come in. I want to tell you something. The lion said. अचानक उसने एक लोमड़ी को उस रास्ते से गुजरते हुए देखा. ओ फॉक्स, कृपया अंदर आओ. मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ. शेर ने कहा. The fox was scared. But he was curious as well. So he stopped just in front of the cave. लोमड़ी डर गई. लेकिन वो उत्सुक भी था. इसलिए वह गुफा के ठीक सामने रुक गया. You are the cleverest of all animals and wise too. From today, you are my minister. Your first duty is to see that I do not remain hungry. Please go and bring something for me. The lion said. तुम सभी जानवरों में सबसे चतुर हो और बुद्धिमान भी. आज से तुम मेरे मंत्री हो. तुम्हारा पहला कर्तव्य ये देखना है कि मैं भूखा न रहूं. कृपया जाओ और मेरे लिए कुछ ले आओ. शेर ने कहा. The fox trembled with fear when he heard this. He knew about the lion's bad mood. But he was a cunning fellow. So he said with a big smile, It's a great honor for me. I am going just now to arrange for some fresh meat for you. The fox went some distance and began to think. He thought and at last, he had an idea. ये सुनकर लोमड़ी डर से कांप उठी. उसे शेर के खराब मूड के बारे में पता था. लेकिन वह एक चालाक व्यक्ति था. तो उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैं अभी आपके लिए कुछ ताजे मांस की व्यवस्था करने जा रहा हूँ. लोमड़ी कुछ दूर जाकर सोचने लगी. उसने सोचा और आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी. A donkey was grazing in the green meadow. The fox went to him and said, Hello brother. What a lucky fellow you are. The king has chosen you to be his minister. Please come with me, the king wants to meet you. The donkey was foolish. However, he was not so foolish as to believe the fox so easily. So he said, How can the lion choose me as his minister? I don't think the post suits me. Please thank the lion, but I won't go to meet him. The fox was very upset.
But he didn't show it. He smiled sweetly and said, "Brother Donkey, you are brave and strong. Just think how handsome you would look seated beside the king. All the animals will bow to you. Let us go to the lion." The donkey believed the sweet words of the fox. So he agreed to go and meet the lion. They went off to the lion's den. एक गधा हरे घास के मैदान में चर रहा था. लोमड़ी उसके पास गई और बोली, "नमस्कार भाई. तुम कितने भाग्यशाली व्यक्ति हो. राजा ने तुम्हें अपना मंत्री चुना है. कृपया मेरे साथ आओ, राजा तुमसे मिलना चाहता है." गधा मूर्ख था. हालांकि वह इतना मूर्ख नहीं था कि लोमड़ी पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेता. तो उन्होंने कहा, "शेर मुझे अपने मंत्री के रूप में कैसे चुन सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह पद मेरे लिए उपयुक्त है. कृपया शेर को धन्यवाद दे, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा." लोमड़ी बहुत परेशान थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं दिखाया. वह मधुरता से मुस्कुराया और बोला, "भाई गधे, तुम बहादुर और मजबूत हो. जरा सोचो कि तुम राजा के पास बैठे कितने सुंदर दिखोगे. सभी जानवर तुम्हें नमन करेंगे. चलो शेर के पास चलते हैं." गधे को लोमड़ी की मीठी बातों पर विश्वास हो गया, इसलिए वह शेर से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया. वे सिंह की मांद की ओर चले गए. When the lion saw the donkey, he knew he was looking at his dinner. Without wasting any time, he pounced upon the donkey and killed it. जब शेर ने गधे को देखा, तो उसे पता चला कि वह अपने खाने को देख रहा है. बिना समय बर्बाद किए वह गधे पर झपटा और उसे मार डाला. The fox was very fond of eating donkey's brain. He said to the lion, "Your Majesty, why don't you go and have a bath in the river before you eat? Then you'll feel fresh and can enjoy the food more." The lion liked the idea. So he went to the river to have a bathe. The fox quickly split open the donkey's head with a stone and ate its brain. The lion too liked to eat donkey's brain. While returning from the river, he had been thinking that he should start his meal with the brain of the donkey. But when he came in, he saw that there was a big hole in the donkey's head and the brain was gone. He roared in anger, "Where is the donkey's brain? Have you eaten it?" "No, Your Majesty." The fox replied with a sly smile, "Don't you know that donkeys have no brain?" The lion was baffled and couldn't say anything. He had to appease his hunger with the tasteless flesh of the donkey. लोमड़ी को गधे का दिमाग खाने का बहुत शौक था. उसने शेर से कहा, "महाराज, आप खाने से पहले नदी में स्नान क्यों नहीं कर लेते? तब आप तरोताजा महसूस करेंगे और भोजन का अधिक आनंद ले पाएंगे." शेर को यह विचार पसंद आया, इसलिए वह नहाने के लिए नदी पर गया. लोमड़ी ने तुरंत एक पत्थर से गधे का सिर फाड़ दिया और उसका मस्तिष्क खा लिया. शेर को भी गधे का दिमाग खाना बहुत पसंद था. नदी से लौटते समय वह सोच रहा था कि उसे अपने भोजन की शुरुआत गधे के दिमाग से करनी चाहिए. लेकिन जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि गधे के सिर में एक बड़ा छेद था और दिमाग गायब था. वो गुस्से में गरजा, "गधे का दिमाग कहाँ है? क्या तुमने इसे खाया है?" "नहीं, महाराज." लोमड़ी ने धूर्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया, "क्या तुम नहीं जानते कि गधों के पास दिमाग नहीं होता?" शेर चकित हो गया और कुछ नहीं बोल सका. उसे गधे के बेस्वाद मांस से अपनी भूख शांत करनी पड़ी. अपने पुस्तक की और कहानियों को पढ़ने और देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जितना भी वीडियो डाला जाएगा वह आपको आसानी से मिल सके. धन्यवाद.
नमस्कार दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद।